So first of all, you have to share some problems. Then we will talk about some solution. Okay. So let's talk about some problems where we are lacking during our communication skills, during our public speaking. Okay. So first, somewhere we are not able to maintain eye contact. Why? I will tell, and I will tell the solution also, that how can we overcome. First one is this. So for the eye contact, we have so many strategies. Just like that, the first one is you can use 50-70 ratio. It means if somebody is speaking and you are listening, then you have to use your eye contact 70%. But if you are speaking on the stage, then you have to use your eye contact with 50%. Why? Let's suppose that I am speaking और सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं. Yes. So यहाँ we are giving our we are making eye contact more than when we are speaking in front of stage. यहाँ हम ज़्यादा eye contact बनाते हैं. Okay. So this is 70% when we are a listener and 50% when we are speaking. Because if you are speaking on the stage, you can't look at one person more than 2 or 3 seconds, because that person might be feel uncomfortable. So you should look that person 2 or 3 seconds more, not more than. Fine. So first you can apply 50-70 ratio. Means अगर हम बोल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, then आपको कितना करना है? 70%. And अगर आप बोल रहे हैं, then you have to maintain your eye contact 50%. This is this. Now let's talk about second. So the second one is when you are making eye contact, do not look one person more than 2 or 3 seconds. Okay. If you are speaking and if you are making eye contact, do not look any person more than 2 or 3 seconds. जैसा कि मैंने अभी बताया, हो सकता है मैं अभी बस इन्हीं को देख के बोलूँ, योगेश को बाद में अनकंफर्टेबल लगने लगेगा. So when you are speaking on the stage, do not see any person more than 2 or 3 seconds. Fine. Next one, if I am talking any person with only one, if I am doing one person counseling or any another thing, अगर मैं किसी एक लोगों से बात कर रही हूँ, then we can make eye contact for 5 to 10 seconds. So in the group, we have to make eye contact for 2 or 3 seconds. But if we are talking individual to anybody, then we have to make eye contact 5 to 10 seconds. Fine. Next one is do not gaze. It means do not gaze to anybody. If you are speaking, do not gaze to anybody. Gaze means basically when gaze is just like a stare. कहते हैं ना कि अगर आप बोल रहे हैं तो एक लोगों को टकटकी लगा के देखना स्टार्ट कर दीजिए. So no, do not do this thing also, because this is also a bad. If you are speaking and if you are gaze to anybody, only one person, this is also not fine. Do not gaze at your phone also. This is also not fine. Now, the next one is use triangle technique. What is the triangle technique? It means you can see any people, you can make eye contact first with eye, second just go on the nose, then mouth, like that. It means ट्रायंगल टेक्निक क्या होती है, क्योंकि आप हमेशा अगर आई कांटेक्ट में इनसे मिला के बात करी, हो सकता है आफ्टर सम टाइम I will also feel uncomfortable, or maybe that person might be feel uncomfortable. So we have to use triangle technique. First you can make eye contact with eye, then you can move ahead, not only eye contact. So use triangle technique. Now this is all about eye contact. Did you understand? 50-70 रेशियो अगर हम बोल रहे हैं, अगर हमें प्रेजेंटेशन देना है या फिर पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो 50%. If you are listener, then 70% you have to make eye contact. Second, अगर आप ग्रुप में बोल रहे हैं, ऐसे सभी लोग बैठे हुए हैं, then we have to make eye contact 2 or 3 seconds. But अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन से बात कर रहे हैं, then we have to make eye contact 5 to
10 सेकेंड, मिनट नॉट सेकेंड. आफ्टर दैट डू नॉट ग्रेज, मीन्स आप किसी को टकटकी या घूर के आपको नहीं देखना है किसी को, नहीं. एंड सेकेंड थिंग ऑल्सो, sometime you are listening to me, you are making eye contact with me, but you know that somewhere you are staying to me. क्यों? क्योंकि मैं बोलती हूँ तो वो लोग एकदम शांति से बस सुन रहे हैं विदाउट डूइंग एनी मूवमेंट. यस, तो आपको मूवमेंट भी करना है ताकि आपको समझ में आया. यस, अगर मैं कुछ बता रही हूँ, फर्स्ट इज दिस, देन यू यस, नाउ दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, सो यू हैव टू नोडेड योर हेड ऑल्सो विद द लिसनिंग. फाइन. क्या जैसे हम कहते हैं ना, समझ में आया, यस मैम, बिना बोले भी हम कहते हैं अगर कोई बताता रहता है. सो वी हैव टू यूज दिस ऑल्सो. देन द लास्ट वन इज ट्रायंगल टेक्निक, सो वी हैव टू यूज दिस. नाउ वी हैव डन दिस. लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड प्रॉब्लम. व्हाट इज दिस? टेल मी एनीबडी. हैंड जेस्चर. सो इन द हैंड जेस्चर व्हाट हैपन, somehow we do like this. हम अपने हैंड को कितना बांध के रखना चाहते हैं, and somewhere we do like this, ऐसे. Yes, so this is showing that we are not confident, we are under confident. So how can overcome this problem? Let's talk about some strategies also. So for hand gesture, first you can use listing. लिस्ट जानते हैं, 1 2 3 4 5. सो इफ यू आर स्पीकिंग एनीथिंग एंड देयर इज लाइक सीरियल वाइज, सो यू कैन स्पीक द फर्स्ट वन इज दिस, आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज दिस, देन थर्ड वन, फोर्थ वन, लाइक दैट यू आर यूजिंग योर हैंड जेस्चर. सो फर्स्ट हमें ये रहा हमारी लिस्टिंग, जिसमें हमें यूज करना है 1 2 3 4, यू हैव टू यूज. फाइन. नेक्स्ट वन इज लेवल. लेट्स सपोज दैट कि अगर कोई चीज है और मैं बता रही हूँ कि इसका लेवल ये है, देन आफ्टर दैट इसका लेवल ये. नाउ आई एम यूजिंग माई हैंड. अगर कोई किसी चीज का हाई लेवल है, देन आई एम टेलिंग लाइक दैट, बट अगर किसी चीज का लो लेवल है, देन आई एम टेलिंग लाइक दैट. सो विदाउट यू, इफ यू आर स्पीकिंग ऑल्सो एंड यूजिंग योर हैंड जेस्चर, दिस इज टेलिंग अबाउट द लेवल. फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन. दिस इज separating. Like now we have to do this and after that we have to do that. By this way I am using this, that for the opposition thing, opposite thing. अगर कोई चीज उससे विपरीत है तो हम कैसे बताएंगे? Let's suppose that right now we are telling this, we are teaching this, but somewhere we are not doing this. So कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे हैं. Okay, this time you can use this. Then after that, if you will use that, then also you can improve it. So हमें this that का यूज करना है किसी भी चीज अपोजिट, कोई चीज अपोजिट है उसको बताने के लिए. इस तरह भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि you can go here, then after that there. कोई अपोजिट चीज है तो हम उसको बता सकते हैं. So first one is listing 1 2, Ranjana, are you sleeping? 3 4, and second one is level. लेवल बताना हो तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे, इफ दैट इज हाई लो. थर्ड वन इज सेपरेटिंग. अगर कोई चीज अलग हमें करनी है, अपोजिट बताना है, देन वी कैन यूज दिस, दैट. एंड द लास्ट वन इज प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज दिस प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर? इज sometime if you are doing public speaking, okay, and you are saying, do you know everybody, what is this? If you know, please raise your hand. So with the speaking, you have to also raise your hand. It means whatever you are instructing, whatever you are giving, any you can say that अगर आप कोई भी काम दे रहे हैं to your audience, so you have to do that work with you also. Fine. अगर मैंने बोला, did you understand everybody? How many you have understood? Please raise your hand. So here I am using my कि आपको raise hand करना है इस तरह. This is called prompting structure. Somehow हमें अपने hands को use कराना है. Hand gesture को जितना हम use करेंगे उतना ज़्यादा openly हम बोल पाएंगे. Okay? So these are the techniques. Listing कर सकते हैं 1 2 3 4.
लेवल के लिए दिस लेवल, दैट लेवल, दिस, दैट, देन आफ्टर दैट प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर मीन्स whatever we are doing or whatever we are saying to do this to you all, हमें भी उसके साथ करना होगा ताकि आपको समझ में आए, and we can make connection with each other also. Fine. So this is thing. Now let's talk about third one is, may I raise this? Yes, sir. So the third one is body language. In the body language, you know that we are very when we are nervous, जैसा कि मैंने भी उसके पहले बताया, जब हम नर्वस होते हैं ना तो या तो ऐसे करना स्टार्ट करेंगे या तो ऐसे करना स्टार्ट करेंगे, somehow या तो ऐसे ऐसे कोई ना कोई करता है, मीन्स वी आर शोइंग टू अस कि हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है. सो फॉर दिस फर्स्ट स्ट्रैटेजी शुड बी ओपन योर बॉडी ऑन द स्टेज. इट मीन्स अपनी जो भी बोल रहे हैं, डू नॉट टेक इन द नेगेटिव, टेक इट पॉजिटिव. ओके, ओपन योर बॉडी. इट मीन्स कि आपको इस तरह न करके नहीं या फिर बचा के नहीं रखना है, पूरा खुल के वो this stage is your and you have to speak with openly mind. Okay, so first one is keep your body open. The second one is keep your hands, palms open. It means ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना सही होता है कि बोलते रहिए. उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डू लाइक दिस, उसको करते रहिए कि कैसे somewhere you are doing it, उसको प्रैक्टिस करिए कि अच्छा ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे ऐसे. By this way you can use it. Now let's talk about third one. The third one is this, that first, what is that? Is open your mind, body. Second one is open your arms, means hand. And the third one is be comfortable with your stage. स्टेज के साथ कंफर्टेबल रहिए. यहाँ कोई भूत या डरावना कुछ इतना नहीं है कि यहाँ आने के बाद कई लोग तो सिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. आई डोंट नो व्हाई. दिस इज ऑल्सो अ प्लेस. यस, यहाँ भी धरती माँ ही है, कुछ और नहीं है. ओके, सो बी कंफर्टेबल विद द स्टेज. एंड फोर्थ वन इज, लेट्स सपोज दैट सम देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, दे कम फ्रॉम स्कूल, कॉलेज. ओके, सो हमें जब उसमें कहते हैं ना कि कोई एनुअल फंक्शन हुआ या फिर कुछ हुआ, हमें वहाँ बोलना होता है, देन देयर इज वन पोडियम होता है. डू नॉट लीड ऑन द पोडियम, पूरा सो जाए, ऐसा नहीं करना है. ओके, इफ यू आर द स्टेज, मेक अ डिस्टेंस बिटवीन पोडियम एंड यू. कीप योर नोटबुक एंड ऑल द थिंग्स, जो भी चीज़ अगर आप लेके बोल रहे हैं, कीप इट देयर, बट पोडियम और आपके बीच डिस्टेंस होना चाहिए. ये होता है बॉडी लैंग्वेज. आपको उस पर लीड डाउन नहीं होना है या फिर पूरा हैंड रख के नहीं बोलना है. टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय योरसेल्फ. इट मीन्स आपको अपने ही भार पे रहिए, उस पर पोडियम पे पूरा भार देख मत रहिए. आप अपनी नोटबुक वगैरह रख सकते हैं, बट मेक अ कीप डिस्टेंस बिटवीन पोडियम एंड यू. सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर बॉडी लैंग्वेज. व्हाट इज द फर्स्ट वन? Open your bodies on the stage. Second, open your palms. And the third one is, yes, be comfortable on the stage. And fourth one is, it means make a connection, not connection, make a distance between you and podium. So this is the for body language. Now let's talk about fourth one. How can we regain the attention of audience? Means regain attention of the audience. For this, first you can keep your whatever you are speaking, keep your topic first. Start with introduction. Second, you can give some story or structure, and third should be conclusion. So how can we regain the audience attention? When you are giving your introduction, when you are telling about your topic, you should tell about the topic also and what is the benefit of this, why you are going to tell. It means if you are giving message, do not talk about yourself. मैसेज से उनका कोई बेनिफिट होना चाहिए, देन एंड देन ओनली दे विल लिसन. नहीं तो आजकल की दुनिया में कोई भी सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है.
अगर आपका कोई बेनिफिट नहीं है, दे विल नॉट लिसन एनीथिंग. सो यू शुड मेंटेन अ कनेक्शन विथ योर ऑडियंस. कोई ऐसा मैसेज दीजिए, डू यू नो इनडायरेक्टली अप्रोच. आप अपने बारे में बता भी रहे हैं, बट डू नॉट ओपन योर प्रिवेसी. कीप योर प्रिवेसी प्राइवेट, ओके, बट मेक अ कनेक्शन विथ द ऑडियंस. सो समवेयर यू कैन कीप योर इंट्रोडक्शन, नेम, टॉपिक का नाम क्या है, बताने क्या जा रहे हैं, उससे हमारी आपके लिए बेनिफिट क्या हो सकता है. देन ओनली दे वांट टू लिसन. उन्हें पहले बता दीजिए कि आपके लिए ये है इसमें, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है इससे. ओके. सेकंड, इन द स्ट्रक्चर समटाइम वी स्पीक अ लॉट, और इतना बोलते हैं कि ऑडियंस कहीं ना कहीं बोर्ड होने लगते हैं. सो यूज सम स्टोरी, नॉट लॉन्ग स्टोरी कि वो स्टोरी सुन के सो जाए, ऐसा भी नहीं करना है. यूज सम स्टोरी बट शॉर्ट स्टोरी, so that they can get connection, they can attract that okay, the speaker is speaking. And the last one is conclusion. In the structure part you can ask some questions also. Question पूछने से क्या होगा, if somebody they are not listening story also, they will attract, उनका कहीं ना कहीं attention आप पे आ जाएगा. okay, they are asking questions also. okay. And the last one is conclusion. In the conclusion part, you have to add some motivational thoughts or quotes. By this way, you can give a message to you all. Fine? ऐसे बोलने से लोग ध्यान से सुनते हैं. आपने सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पॉडकास्ट, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मोटिवेशनल स्टोरीज देखी होंगी. लास्ट में बताता है द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट. वाई? ताकि आपको समझ में, अच्छा हमने ये पढ़ा तो उससे समझ में क्या आया है. Okay, so last one is conclusion. This is the technique for regain audience attention. Fine. Now let's talk about some else also. We have so much fear on the stage. Everybody has fear. Yes. So the fifth one is, how can we overcome fear of public speaking? For this, do you know what is the fear? डर. हिंदी में बोलो तो डर, इंग्लिश में बोले तो फियर. बट फियर है क्या? थिंक अबाउट इट. सॉरी. जैसे कोई नया काम करने जाओ तो थोड़ा डर लगता है. यस. So basically fear is the when our body release danger. कहीं ना कहीं हम डर, कोई डेंजर होता है जब एक्ट करता है, then we feel fear. Now I will tell you that how can you change your negative things in the positive way. Okay, means if you have fear, this is negative term or positive? Negative. So how can we change this negative in positive? So everybody know that fear, when we do any action in danger, that it is called fear. कोई भी एक्शन अगर हमें डेंजर में, अगर जब हमें कहते हैं ना कि बॉडी से आता है कि डर लग रहा है, वही तो फियर कहलाता है. कहीं ना कहीं हम किसी खतरे से डरना स्टार्ट करते हैं, डर आया है बीच में. सो हाउ कैन बी रिलीज दिस? यू नो देयर आर सम वी कैन दिस फिजिकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू फियर. इट मीन्स बहुत सारे, जब हमें डर लगता है ना, तो बहुत सारी हमारी बॉडीज जो होती हैं, बहुत सारे सिंबल्स देते हैं, मैसेजेस देते हैं. फर्स्ट वन इज आर यू नो इट, लाइक स्वेटिंग. यस, लाइक स्वीटिंग, पसीने आने लगते हैं, अरे अरे. एंड नेक्स्ट वन, आर इंक्रीज हार्ट रेट. हार्ट रेट भी तुरंत इंक्रीज होने लगता है. कहीं ना कहीं ये हमारे हैंड में भी बहुत सारा हैंड वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड समहाउ यू नो, आप लोग भी कहते हैं मैम हमें याद तो था बट भूल गए, मीन्स ड्राई माउथ. यस. एंड यू नो इट आर एड्रोलाइन, दिस इज द हार्मोन्स. ये हार्मोन्स कब इंक्रीज होता है हमारे शरीर में? जब हमें किसी से डर लगता है और हम उस चीज से भागना चाहते हैं. दैट इज कॉल्ड एड्रेलाइन. दैट इज एड्रेनल, adrenaline, that is hormone name. So when we get any fear,
सो दिस हार्मोन कहता है भाई बस यहाँ से निकलो, बहुत डर लग रहा है हमें. ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, बट नाउ वी कैन use this technique, we can use this responses, physiological responses, to changing fear into excitement. Let's suppose that if we are scared on the stage, okay, so होता क्या है कि अभी कोई प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग होने जा रही है और मैं कह रही हूँ ओके, सो प्लीज ज्वाइन योर हैंड एवरीबडी एंड लेट्स वेलकम. अब सबके अंदर से वो होता है ना, ऊपर नीचे हो रहा है धड़क. सो लेट्स वेलकम अदिति ऑन द स्टेज. अब होता क्या है कि जितने लोग हैं रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छा मेरा नाम अभी नहीं आया है ना, होता है ऐसा जब हम नाम लेने जाते हैं तब. और नेक्स्ट टाइम अगर क्या हुआ, अगर मैंने बोला ओके लेट्स वेलकम आंचल ऑन द स्टेज, अब आंचल के मन से अंदर से होने लगा, इनका हार्ट भी बढ़ना स्टार्ट, स्वेटिंग आना स्टार्ट. सो कहीं ना कहीं ये फियर है. अब इसी फियर को एक्साइटमेंट में कैसे चेंज करें? कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा खुश भी हो तो सेम होता है. खुश होते हैं तो हमारे साथ यही होता है ना, अरे कब वो चीज मिले, कितने हम लोग एक्साइटमेंट है. सो बाई वी कैन चेंज दिस फियर इनटू एक्साइटमेंट, ताकि हम उसको नेगेटिव में ना लेके जाके पॉजिटिव में ले जाएं. और जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, गलत भी बोलिए तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि सामने वाले को समझ में. ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग डू दिस, बिकॉज लेट्स सपोज दैट यू हैव रिटन 1.2.3 4 5, 1 2 बताई, तीसरा जो था बोले आपको 5वां याद आ रहा है. अब आप सोचने लगे ओके थर्ड क्या था. अब आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि इतने लोग हैं सामने देख रहे हैं. इफ द कैमरा इज ऑल्सो हियर यू विल थिंक ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड. सो ऑन दैट टाइम व्हाट कैन यू डू, यू कैन डू दिस थिंग्स, यू कैन स्पीक 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3 4 को छोड़ दीजिए, 5th को ले आइए. इट मीन्स आपको रुकना नहीं है, आपको कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना है उस चीज को कि हम कैसे बोले, ताकि जो हमारा अटेंशन था, क्योंकि एक बार अगर आपने ऑडियंस का अटेंशन खो दिया देन इट विल बी टेक वेरी हार्डली टू टेक अगेन रीगेन द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. सो एक बार जब आपने किसी चीज को पा लिया है तो उसको खोइए मत. ओके, उसको इंक्रीज करिए, डिक्रीज नहीं करिए. सो अगर आपने 1 2 3 पॉइंट बोला, उसके आगे नहीं याद आया, जो लास्ट का कंक्लूजन याद आ रहा है वही बोल के चले जाइए. बट अपने आप को ना अंडर कॉन्फिडेंट होने दीजिए, ना अपने ऑडियंस को पता लगने दीजिए कि मैंने कुछ भूल के मैं आई. फिर देखिएगा आप अपने आप को बादशाह समझेंगे. इट्स रियलिटी. समटाइम वी ऑल्सो डिड दिस थिंग्स. बोल के आते थे, जब किसी को समझ में ना आए उसके बाद लगता था वाओ कुछ भी बोल के आ सकते हैं अब तो. सो for the confidence, because confidence matter a lot. You are how much knowledgeable you are, it doesn't matter, but if you have confidence you can do anything. Confidence matter a lot. आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके नॉलेज का कोई मतलब नहीं है. बट अगर आपके पास थोड़ा सा ही नॉलेज है बट आपके पास कॉन्फिडेंस भर भर के रखा गया है आपके अंदर, देन डेफिनेटली इट्स मैटर अ लॉट. ओके, सो वी हैव डन दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6th पॉइंट. That is all about voice modulation. अब वॉइस मॉड्यूलेशन कहीं ना कहीं हम पिच कहते हैं इसको. वेव्स जानते हैं, फिजिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने. तरंगे ऐसे ऐसे जाती हैं, तरंगे रहती हैं, ऐसे ही होती है ना वेव्स. सो दिस इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन. मान लीजिए ये पॉइंट है 1, ये 2 हो गया, ये 3 4 5. अगर मैं ये 5 के पॉइंट से बोल रही हूँ. ओके, so welcome to FE everybody. I am very happy to share these things. Now we am going to share about this that. आप कहेंगे मैन की लगता है छपरा एक्सप्रेस या फिर वंदे भारत चल रही है. Yes, so we don't have to speak that much, you know, not loudly, that much with the fast कि किसी को समझ में ही ना आए और 10 मिनट के बाद वो कहें बस चलते हैं. दोबारा से अगर इनका सेमिनार या कुछ रहा ना, इनका पढ़ाएंगे भी तब भी नहीं आएंगे हम. ऐसे बोलती है जैसे लगता है कि इनको कुछ अब छोड़ के चले ही जाना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1 पॉइंट, दिस वन. सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी. माय नेम इज रंजना यादव एंड आई एम गोइंग टू शेयर. आप कहेंगे लगता है एक साल तो लग ही जाएंगे इनका खत्म करने में. यस,
आप लगा कितने दिन में इनका लगता है स्पीच खत्म होगा, इसका कोई पता नहीं है, हमें आइडिया नहीं है. सो डू नॉट स्पीक दैट मच स्लोली ऑल्सो. इतना धीरे नहीं बोलिए कि लोग परेशान हो जाएं. You can keep your voice with modulation, like you can speak, okay, good morning everybody, so now I'm going to share about this. What is the benefit of this? You can tell. Means आपकी voice as per the situation, as per the condition, as per your topic, you have to change your voice. स्लो कहाँ करना है, धीरे कहाँ करना है. गाना गाते होंगे आप लोग, बहुत शादी वाला भी गाना गाते होंगे आप लोग, तो उसमें पता चल जाता है कि इसको कहाँ खींचना है और कहाँ छोड़ देना है. यस. सो दिस इज ऑल्सो सॉन्ग में भी बहुत सारे. देखिए अगर कोई सिंगर होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ कहाँ वो खींच के पूरा गाते हैं और कहाँ वो स्लो कर देते हैं. सो वैसे ही हमें पब्लिक स्पीकिंग के दौरान भी बोलना है. फाइन. सो दिस इज मैटर अलॉट योर वॉइस मॉड्यूलेशन. और ये कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे ऐप आते होंगे जिसमें सिर्फ आप वॉइस सुन सकते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग, और उस स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं. उसमें कहीं ना कहीं इसी वॉइस मॉड्यूलेशन का काम होता है. बोलने का तरीका कैसा हो रहा है, बोल कैसे रहे हैं. ओके, लेट्स सपोज दैट अगर मैं बोली वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल, सभी लोग ध्यान सुनेंगे तो ये किसका, इफ दिस इज वर्किंग देयर इज वॉइस मॉड्यूलेशन इज वर्किंग. कहीं ना कहीं मैं अपने आवाज को स्लो धीरे कर रही हूँ. तो आपको बोलना है जस्ट फील द वर्ड को फील करके बोलिए बस, और कुछ नहीं करना है. जितना आप फील करेंगे ना उतना आप बोल पाएंगे वर्ड. एंजॉय के साथ बोलिए. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन लास्ट वन इज, दिस इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बट दिस इज लास्ट. सो द सेवेंथ वन इज इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग. इन द इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, लेट्स सपोज दैट कि कोई आया और मैंने इंसिडेंट आपको उठा दिया. अनुराग प्लीज स्टैंड अप, योर प्रेजेंटेशन विल हैपन टुडे और योर टॉपिक इज दिस. अब अनुराग सोचने लगे मैम आप कैसे मुझे दे सकती हैं मैम, मैंने रेडी भी नहीं किया, इससे पहले बताया भी नहीं मैम, मैम कैसे मैं बोलूंगा कैसे मैम, आप समझती नहीं है मैम. मैम आज नहीं मैम, नहीं मैम नहीं आज नहीं, कल 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 पक्का मैम, कल पक्का, एक दिन का समय दे दीजिए. सो हाउ कैन बी ओवरकम दिस? इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग वही होता है. इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग का मतलब ही होता है यू आर स्पीकिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग. फॉर दैट आई हैव वन framework, that is, let me use another marker. This frame is 3-2-1 strategy. Okay, for this अब आप लोग सोचेंगे मैम ये 3-2-1 क्या है, 1-2 का 3, 3-2 का 4 आता नहीं है मुझे. So 3 is steps, 2 is types, and 1 is thing. It will be help a lot in any. अगर आपको इंसिडेंट कोई टॉपिक दी जाती है ना, you can also do this impromptu speaking just because of this, by using this framework 3-2-1. 3 means steps, 2 types, and 1 things. So let's suppose that you can give any topic. अभी मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया है, कोई टॉपिक दीजिए आप लोग. Do it fast. Social media. Okay. So what is the thing social media? Basically social media is good platform also. There are so many advantages and disadvantages both. One thing मैंने किया complete. Now what is the types? There are so many types of social media. You can say YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp, Snapchat. So many things are there. Now what is the steps? So you know that how can we go on app or go on the Play Stores, download the apps, do these things. After that, we are very engaging in the social media. That time we forget all the things, whatever we are doing. If we have started social media once, we can't lose them again. होता है ना सोशल मीडिया में, एक बार अगर पकड़ लिया तो इंस्टाग्राम को छोड़ेंगे नहीं. कितने लोग हैं जिसके एडिक्टेड हो जाते हैं. एक बार हो गया तो उसको, अगर आपने इंस्टाग्राम को 1 या 2 महीने यूज कर लिया, उसके बाद अनइंस्टॉल करने के बाद भी अरे अब
ऐसा लग रहा है कि कुछ ना किसी चीज की कमी तो अंदर से लग रही है। अब ये है कौन? इंस्टाग्राम है। सो दिस इज ऑल्सो स्टेप। नाउ यू कैन सी, मैंने इससे पहले बताया नहीं था, अगर मैं चाहूंगी तो इससे ज्यादा मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। नाउ यू कैन सी दैट कि मैं इसका यूज करके, मैं अगर नहीं भी रेडी की हूँ, अगर मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया कोई टॉपिक, देन ऑल्सो आई कैन स्पीक समथिंग। ब्लैंक होने से तो अच्छा है कुछ बोले, कहते ना कुछ ना से हाँ ही भला।